Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and this is the class for 11th class, and today I am doing PYQs, previous year questions, asked questions on projectile motion. Let me start. प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 1. A shell of mass m is at rest. Initially, it explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of the third lighter fragment is. नीट में आया है 2022 में आया है. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन कुछ ऐसे है. इट्स एक्स, इट्स वाई. यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसके 3 पीस हुए. एक पीस 2m का विद वेलोसिटी v और दूसरा पीस वो भी 2m का, उसका भी वेलोसिटी v, और तीसरा पीस जो है उसका वेलोसिटी का पता नहीं है लेकिन उसका मास m है, क्योंकि रेशो है मासेस का 2:2:1. इसका 2m, इसका 2m, इसका m. इसका हमें वेलोसिटी v प्राइम निकालना है. दैट इज द क्वेश्चन. Initially an object here with mass obviously 5m, it explodes into 3 pieces. 2 pieces go perpendicular to each other and the third piece goes in some other direction. We have to find its velocity. Third piece. So initially the object was at rest. So what was the initial momentum p? That is 0. And what is the momentum after the explosion? That's p2. That is 2mvi इस डायरेक्शन का प्लस 2mvj ये वाला मोमेंटम पार्ट प्लस m, इसका पता नहीं डायरेक्शन, इसलिए इसको एरो रख दो. अब when the explosion takes place and the fragments are produced, the total momentum is conserved. The initial momentum is equal to final momentum of the 3 parts. वजह ये है कि there is no external force. Whatever happens internally, it happens and it explodes from internal forces. So, और kinetic energy is not conserved. पहले kinetic energy 0. अब देखो इन fragments का kinetic energy कितना है. It is the momentum which is conserved. Because the basic rule is, if there is no external force, momentum has to be conserved. तो अब मैं इसको इसके equate करता हूँ. Because there is no external force and I will get the answer. Have a look. That is P1 is equal to P2. That's 2mvi plus 2mvj plus mv prime is equal to 0. m cancels throughout and what is v prime जो मुझे निकालना है? 2vi plus 2vj with a negative sign, क्योंकि इन दोनों को मैंने ट्रांसफर किया. And what is v prime is equal to minus 2v common I plus j. What is v prime magnitude is equal to 2v magnitude, 2v का magnitude 2v और इसका root of 1 square plus 1 square is equal to 2 root 2v. Answer third part का. There is a body, it goes into fragments. 2 parts go perpendicular to each other and the third part goes in some other direction. We found its magnitude. Direction भी देखो. It is in the third quadrant because both are negative. And the angle it makes with the x-axis must be 45 degrees because I plus j. That's it. 2 root 2v. Answer. A ball is projected with velocity 10 meters per second at an angle of 60 degrees with a vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be 60 degrees with the vertical. Don't forget that. It is x, it is y, it is origin, and you are launching an object 10 meters per second at an angle of 60 with the vertical. That means it makes 30 with the horizontal. And it is like this. We have to find velocity at the top position. मुझे बताइए what is the velocity in the horizontal direction? That is 10
cos 30. What is velocity at the top position? That is Vx. Vertical part is 0 as you know. Yes, sir. तो horizontal part जो Vx है that is equal to the initial x velocity, because there is no change in the x velocity in the projectile motion because x acceleration is 0. तो Vx भी Ux के बराबर है. As you know, there is no acceleration in the x direction. If there is no acceleration in the x direction, that means x direction velocity will remain constant. That is what it means. तो इसका आगे लेकर के 10 cos 30 को लिखो. 10 cos 30 ही इसका आंसर है. That is 10 root 3 by 2. That is 5 root 3 should be the answer. And we have to find the velocity at the top position. The velocity at the top position is only horizontal part. Vertical part has become 0. And horizontal part is always the same as the initial horizontal part, because there is no acceleration in the horizontal direction. हो गया. 5 root 3 is the answer. Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftop of two buildings 100 meters apart and of the same height 200 meters with the same velocity 25 meters per second. When and where will the two bullets collide? हाँ, तो मैं ऐसे बनाता हूँ. ये दो बिल्डिंग्स है ऐसे कुछ, और यहाँ आपने ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया 25 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया और एक ऑब्जेक्ट 25 मीटर्स पर सेकेंड. 200 मीटर्स इसका हाइट है और डिस्टेंस इनके दरमियान 100 मीटर्स है. हमें देखना है हमें ये देखना है कि वायर विल दे कोलाइड. ऐसे सिमिट्री है 25 200 एंड 200, इसलिए दे विल हिट एट द इन मिडवे बिटवीन द टू. दे विल हिट एट मिडवे बिटवीन द टू. यहाँ पर हिट करेंगे वो इस पॉइंट पर. कितना ये दूर है यहाँ से? 50 होगा दूर, क्योंकि ये सारा 100 है, तो हाफ डिस्टेंस पर हिट करने का मतलब ये 50 है. तो कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने में, 50 मीटर की कवर करने में? दैट इज टाइम इज इक्वल टू दिस 50 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25. 2 सेकेंड आंसर. भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर किया इसने कवर, किस वेलोसिटी? 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, क्योंकि एक्स वेलोसिटी 25 है और x डिस्टेंस 50 है. तो टाइम निकालने के लिए x डिस्टेंस बाय x वेलोसिटी खत्म हो जाएगी. और इस टाइम में कितना नीचे गिरा है? वही 1/2 GT स्क्वायर हो गया. 1/2 ये हो गया 10, t स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 20, ये 20 नीचे गिरा. अगर 20 नीचे गिरा यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, तो बाकी कितना है? ऑब्वियसली 180 मीटर्स. तो आंसर ये होना चाहिए दे विल हिट 180 meters above the ground after 2 seconds. वेरी नाइस. जवाब दे रहा है बच्चा, जवाब दे रहा है. ये जहांगीर बैठा है मेरे सामने. नाइस, गुड बॉय. आफ्टर 2 seconds at a height of 180 meters. Yes, that is the answer. When an object is shot from the bottom of a long, smooth inclined plane kept at an angle 60 degrees with horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degrees, the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. We have to find x1 is to x2. कुछ क्वेश्चन ऐसे है, ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा समझो, और आपने इस ऑब्जेक्ट को विद सम वेलोसिटी, चलो u वेलोसिटी से लॉन्च किया अलोंग द इंक्लाइन. आगे जा कर के यहाँ स्टॉप हो गया समझो, यहाँ वेलोसिटी 0 है, और इसने x डिस्टेंस कवर किया.
वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज डाउनवर्ड्स अलोंग द प्लेन, दैट इज जी साइन थीटा, नॉट जी, दैट इज जी साइन थीटा। तो मुझे ये x चाहिए, हाउ मच x डिस्टेंस इट कवर्स। फॉर्मूला ये लगाया जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस का फॉर्मूला। वी स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर, 2s इज माइनस जी साइन थीटा बिकॉज ऑफ इट इज डाउनवर्ड नेचर, s इज x1 या x। तो आपके लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू x1। ठीक, तो मुझे बताइए ये जो x1 है किसके बराबर है, या x किसके बराबर है, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब ये 60 डिग्रीज पर था तब डिस्टेंस x1 है, तो x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g साइन 60। और जब इसको 30 आप करोगे इस एंगल को, तब x2 क्या है, वही यू स्क्वायर, क्योंकि सेम स्पीड से आपने इसको लॉन्च किया, 2g साइन ऑफ 30। अब x1 बाई x2 निकालना है, रेशो निकालते हैं। x1 बाई x2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g साइन 60। चलो x1 बाई x2 इज इक्वल टू, x1 बाई x2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g साइन 60 डिवाइड बाई यू स्क्वायर बाई 2g साइन 30। यू स्क्वायर कैंसल्स, 2g कैंसल्स, साइन 30 ऊपर, नीचे साइन 60। ये हुआ ऊपर 1/2, नीचे √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा। 1/√3 का आंसर होना चाहिए 1:√3। आप कॉपी कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। आपने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड यू, और कितना आगे जाएगा आप फॉर्मूला लगा करके, और फिर ये x निकालो, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। पहली बार आपने थीटा 1 पर लगाया, दूसरी बार आपने इसको थीटा 2 पर लगाया, 30 डिग्रीज पर लगाया। तो फिर आपको रेशो निकालना पड़ेगा, पहले कितना दूर गया और सेकंड केस में कितना दूर गया, उनका रेशो निकालना है, बस हो गया, समझो। x and y are the coordinates of a particle। ये x कोऑर्डिनेट है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और ये y कोऑर्डिनेट है 10t। While x and y are meters and t is in seconds, एक्सेलरेशन निकालना है हमें at t is equal to 2 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इस x कोऑर्डिनेट से मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। हाउ इज दैट? इसको dx by dt, that is velocity in the x direction, that is 5 minus 4t। अब इसका डिफरेंशिएट करो, dvx by dt, वो हो गया ax, that is इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 हो गया माइनस 4, ax हो गया माइनस 4। एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज माइनस 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब जाकर के y इज इक्वल टू 10t dy by dt, that is velocity in the y direction, that is 10। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट करो, that is ay, इसका डिफरेंशिएट ay, लेकिन 10 का डिफरेंशिएट 0। मतलब आपको दोनों कंपाउंड्स मिले, ax भी मिला और ay भी मिला। ax मिला -4 और ay मिला 0, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हुआ? -4। एक ही तो कंपोनेंट है, हो गया -4। कहाँ है? ये देखो, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं? चलिए, ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड। इसको बनाना पड़ेगा, एक्स, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, ये है शिप जो इस ओर मूव करता है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, एंड ए शिप
100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, वो यहां पर है एक और शिप्स 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, और किस ओर मूव कर रहा है ये बी? नॉर्थवर्ड्स, ऊपर के और नॉर्थवर्ड के, ऐसे इसका वेलोसिटी है। वो भी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, कितने टाइम के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम होगा? पहले तो इनके दरमियान डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, लेकिन ये जाएगा आगे और ये आएगा इस डायरेक्शन में वेस्ट के, और इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। ये ऊपर जाता रहेगा और ये आगे जाता रहेगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, लेकिन आखिर में ये चला जाएगा ऊपर और ये बहुत आगे निकलेगा, और फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक। तो पहले डिस्टेंस कम होता जाएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हमें देखना कि कितने देर के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम हो, जिसके बाद डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो डिफरेंशिएशन का तरीका, लेकिन मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं। देखो, मैं चाहता हूं ये एक ही जगह हो। मैं चाहता हूं कि ये जो शिप है एक ही जगह रहे। ये दूसरा शिप जो है ऊपर की ओर जा रहा है, डिस्टेंस से 100 किलोमीटर है। मैं चाहता हूं ये एक ही जगह हो जाए, फिर प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक ही जगह रखने के लिए इसका जो वेलोसिटी है इसके हवाले कर दूंगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस शिप के लिए इसके दो वेलोसिटीज है, एक ऊपर के ओर 10 किलो, एक इसके अपोजिट में ऐसे। सो दैट मीन्स दिस कम्स टू रेस्ट इन इट्स ओन फ्रेम, and for this it has two velocities, one actually जो इसका था, दूसरा जो इसने दिया in the opposite direction। इसको कहते हैं, now it has relative velocity, this B has relative velocity with respect to A। how much is that relative velocity? 10J and 10I। it is, suppose अगर ये I है तो ये I है और ये J है। this object B has velocity 10I plus 10J with respect to A, and this B has velocity 10 with respect to the person on ground, only 10 with respect to person on ground। for this 10J and 10I। तो ये एक ही जगह है, and it has a resultant velocity in this direction 10√2, इन दो का रिजल्टेंट। और जब इसका मतलब इसके लिए, इस ए के लिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो समझो दिस इज द पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बस रिजल्टेंट जो है दो का वेलोसिटी का रिजल्ट वो इस ओर है। मतलब ये जो जहाज है, ये जो शिप है, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ए से परपेंडिकुलर डालो तो ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये 45 का एंगल हो गया, और ये 100 का जो ये डिस्टेंस है दैट इज 100 cos 45, और वेलोसिटी है 10√2 इन दिस डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस मिल गया आपको, वो ये है, वेलोसिटी भी मिला, वो ये है। तो अब टाइम निकालो। टाइम जो है वो टाइम ऐसे दिखाता हूं मैं। टाइम जो है दैट इज डिस्टेंस, दैट इज 100 cos 45 डिवाइड बाई 10√2, वो हो गया 10 डिवाइड बाई ये √2, cos 45 का भी नीचे √2 हो गया 2। 5 is the answer, 5 hours, 5 hours, because everything is in hours। time will you get in hours। it's a very technical method। इसने अपना वेलोसिटी इसके हवाले कर दिया, खुद रेस्ट में आया, और ये अब इस रास्ते जा रहा है। फॉर दिस मैंने इस रास्ते को बनाया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, और दिस इज द शॉर्टेस्ट। ये तो शॉर्ट, जब यहां था तो शॉर्टेस्ट तो नहीं था,
जब यहाँ है तो शॉर्टेस्ट तो नहीं है, जब यहाँ है परपेंडिकुलर पाथ पर तो शॉर्टेस्ट हो गया। ठीक हो गया क्वेश्चन। आंसर इज दिस 5 hours. A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity 5 meters per second at an angle theta. Another projectile is fired from another planet with a velocity 3 meters per second at the same angle. Follows the trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the Earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is, और अर्थ का जी आप 9.8 ले रहे हैं। मतलब आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका विद वेलोसिटी 5 एट एन एंगल थीटा, किसी और प्लेनेट पर आपने प्रोजेक्टाइल फेंका इसी एंगल पर विद सम अदर, इसी एंगल पर, हाँ इसी एंगल पर, बट विद ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अर्थ पर जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, वही पाथ उस प्लेनेट पर भी है प्रोजेक्टाइल का, मतलब वर्टिकल हाइट भी वही है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी वही है। वही तो कह रहा है पाथ इज द सेम। हमें देखना है कि उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू है। देख लीजिए, ये अर्थ समझो और ये वो प्लेनेट समझो, पाथ तो सेम है, एच भी सेम है दोनों का, और ये थीटा भी सेम है। लेकिन यहाँ पर आपने अर्थ पर 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दिया है, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो यहाँ जी प्राइम कितना है, बस ये क्वेश्चन है। निकालो इसका एच यहाँ पर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। गुड, निकालिए यहाँ भी एच, दैट इज यू प्राइम स्क्वायर, वो 3 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा वही है 2g प्राइम। अब h दोनों पर सेम है, अब इनको इक्वेट कीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्राइम। 2 कैंसल्स, साइन स्क्वायर थीटा कैंसल्स, तो यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू यू प्राइम स्क्वायर बाई जी प्राइम। यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू यू प्राइम स्क्वायर बाई जी प्राइम। ये तो हो गया 5 स्क्वायर, क्योंकि अर्थ पर जब प्रोजेक्ट करते हो तो 5 होता है, 5 स्क्वायर 25 बाई 10 ले लो, इससे 9.8 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यू प्राइम स्क्वायर दैट इज 9, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड से आप इसको लॉन्च कर रहे हो उस प्लेनेट पर, बाई जी प्राइम वो निकालना है। व्हाट इज जी प्राइम, दैट इज 10 इंटू 9 बाई 25, just 5 5s are 25, 5 2s are, that's 18 by 5, it is 5 3s are 16, और वहां से कितना आया 16, 18 से 16 2, 5 4s are, that is 3.4, 5 15, 5 15 नहीं 6, 3.6 should be the answer। सीधा आंसर 3.5, क्योंकि हमने जी 10 लिया और इसने जी को 9.8 लिया, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। लेकिन यू कैन गेस द राइट आंसर। चलो, A particle is moving such that its position coordinate, पहला पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 at time t is equal to 0, फिर at time t is equal to 2 position is 6 and 7 at t is equal to क्या 2, yes, फिर 13 14 at what time t is equal to, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम 0 to 5, 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है ये निकालना है क्वेश्चन। बस एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज निकालना पड़ता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, नॉट इन बिटवीन। इनिशियल पोजीशन इनिशियल टाइम, फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम, दैट इज ऑल। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट,
x displacement from initial to final. Initial position, initial x 2 है, final x 13 है, तो डिफरेंस कर दो 11i. What is delta y? 11G. 14 minus 3 11G. 11j. बताइए what is the average velocity? Displacement, that is 11i plus 11j divided by time interval 0 to 5. 0 to 5, that is 5. 11 by 5 common, I plus j, answer should be this. कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मार्क करना है. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मार्क करना है. बीच वाला ये कंफ्यूजन के लिए दिया है. These were 8 questions PYQs जो पहले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. मैंने 8 दिखाए, कल मैं फिर से और दिखाऊंगा. एंड कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.